Good evening and welcome back to the lecture 3 of Indian Penal Code. In the last two lectures, we had studied the introduction of the Indian Penal Code, and other than that, the element of crimes we had discussed. Now, in this lecture, we'll read and understand the general principle of actus reus. We had discussed that actus reus is action, something which is wrong, and the mens rea, guilty mind, there has to be some collision between these. ये दोनों में एक साथ होने चाहिए. They must be together. Then only the crime will happen. Guilty mind plus guilty act, and it should be done against a state law. It should be done against the authority of the law. If there is no law which by the act which is prohibited by law, somebody is doing that act, it means he is not doing the crime. The law want to restrict some act, and the human being is doing that act, it means he is doing some crime against the state act. Positive law theory we had gone through in the jurisprudence lecture. Now see, we'll study this maxim, actus non facit reum nis mens rea. This is the Latin maxim, or this is very important to understand the law of crime, which says actus reus, guilty act, and mens rea, that is guilty mind. Both together makes a crime. If the act is done or dependent was under a legal duty to take positive action. General principles of the law says that if something has been done under a duty, someone is bound by the duty. We are studying general principle of actus reus. If somebody is bound by some duty and he does some act, then he will not be liable for any crime. Means, suppose a policeman who is bound by his duty, वो किसी डकैत का पीछा कर रहा है, ड्यूरिंग द चेज उसने फायर किया, उसके गोली लग गई, चोरी करने वाले के या डाकू की गोली लग गई, तो he will not be liable for crime, because this act he is doing under the obligation of his duty. Because the duty arises from statute. ये जो उसको ड्यूटी मिली हुई है, ये कानून के तहत उसको ड्यूटी मिली हुई है. अगर अदरवाइज ये एक्ट जो है, अगर उसने अदरवाइज किया होता, when he is not on the duty, तो ये क्राइम हो जाता. लेकिन because at that time on duty he is bound by his duty, and statute is giving that power to that policeman to fire on a thief or on a robber, it means he is bound by the duty, and he is not constituting any crime. Children and Young Persons Act 1933, omission on culpable by people over age of 16, failing to look after child under 16. ये एक एक्ट था 1933 में यूके के अंदर एक था. 16 साल से ज्यादा लोग के जो उम्र के थे, उनके ऊपर एक ड्यूटी थी 16 साल से कम लोगों के का केयर करने की ड्यूटी थी. वो अगर वहां पे वो ड्यूटी नहीं कर रहे थे, तो दे आर डूइंग द ओमिशन. तो वो जो ड्यूटी है वो आ रही थी, वो एक एक्ट के थ्रू आ रही थी, और वहां पर उनके लिए बिल्कुल ये बाध्य थे वो इस बात के लिए कि वो कम उम्र वालों को जो है संरक्षण दें, उनका देखभाल करें,
और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा था तो इट वाज ओमिशन। जो हमने पढ़ा था ओमिशन में कि कोई ऐसा एक्ट जो करना चाहिए और नहीं करा जा रहा, तो वो जब वहां से भी एक क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है। ड्यूटी अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है ड्यूटी आती है। आपने किसी को एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया किसी काम करने के लिए, वो उस पर एग्री हो गया, आपके बीच में समझौता हो गया कि आपने इसको करना है, तो कुछ काम करने की संविदा से काम ना करने की अगर स्थिति आती है तो वो ड्यूटी उसके ऊपर जो है, दैट पर्सन विल बी लायबल टू नॉट परफॉर्मिंग दैट ड्यूटी एंड ही विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी। ड्यूटी ओन्ड टू फैमिली मेंबर्स, ये भी एक ड्यूटी है, हर आदमी की है, माँ बाप की बच्चों के लिए, बच्चों की माँ बाप के लिए, ये भी एक ड्यूटी है। ये आर वर्सेस गिब्सन्स एंड प्रॉक्टर केस हुआ था। इसमें मैन एंड वाइफ वर गिल्टी ऑफ मर्डर बाय फेलिंग टू फीड द मैन। इसमें जो उनकी बच्ची थी, उनकी ड्यूटी थी कि वो उसको फीड कराएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, और ऐसा ना करके उन्होंने ओमिशन किया था और उस ड्यूटी को उन्होंने जो है ब्रीच किया था उस ड्यूटी का, तो वो वहां पर लाइबल हुए थे। दोस्तों इसके अलावा देर आर अदर थिंग्स विच ऑल्सो जनरल प्रिंसिपल्स हैं। एक्टस नॉन फैसिट रियम निस मैंसिट रिया, एन एक्ट डज नॉट इट सेल्फ मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। ये हम बार बार इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है इन लॉ ऑफ क्राइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो है एक्ट जो है वो सिर्फ आदमी को गिल्टी नहीं बनाता, कि अगर उसका मेंस्ट्रिया, उसकी थिंकिंग ऐसी नहीं है कि वो उसको जो है वो करे। देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ मेंस्ट्रिया। फर्स्ट वन इज इंटेंशन, इंटेंटेड टू डू, वो क्या वो करने के लिए तैयार होना चाहिए, एंड द सेकंड इज knowledge of the circumstances that makes the act a criminal offense। हमारी जो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से नॉलेज जो है वो मेंस्ट्रिया की तरह रखी गई है। सिर्फ मेंस्ट्रिया को मेंस्ट्रिया कह के नहीं छोड़ दिया गया कि वहां पर इंटेंशन, अगर इफ ही हैड द नॉलेज, वहां पर नॉलेज अगर है तो वो मेंस्ट्रिया के तहत आती है। मेंस्ट्रिया टेक्स एन ऑन डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, दैट इज व्हाट is evil intent for one type of crime. One offense may not be so for another kind. For example, in case of murder, intent to goes is mens rea than in case of theft. जो अगर एक आदमी मर्डर कर रहा है तो उसके वहां पे जो उसकी इंटेंशंस होंगी वो अलग होंगी, और थेफ्ट अगर कर रहा है तो उसकी इंटेंशंस अलग होंगी। और मेंस रिया के कई इसको हम अलग अलग उसमें डिफाइन कर सकते हैं। इंटेंशन इज देयर, फर्स्ट तो इंटेंशन की बात है, मोटिव हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं, नॉलेज की हम बात करेंगे, और नेग्लिजियंस की हम बात करेंगे, रेकलेसनेस भी हम कह सकते हैं। देयर आर दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड विच कंस्टिट्यूट मेंस रिया। हमारे यहाँ केस हुआ था करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टैट्यूटरी पेनल प्रोविजन मस्ट बी रीड with the element of mens rea unless a statute either expressly or by necessary implications rules it out. What is intention? It is the purpose or design for which an action has been done. I'm repeating it. It is the purpose or design for which an action has been done. The intention is basically position of mind at a particular time in committing an offense and will of accused to see the effect of unlawful action. उसकी इंटेंट है और उसकी विल है, वो रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन विच ही इज टेकिंग अनलॉफुली, जो उसको लॉ मना करता है करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो वो कुछ कर रहा है, ही वांट टू सी द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन, और वहां पे उसकी इंटेंशंस है। एक केस और हुआ था हाइम वर्सेस डीपीपी। इन दिस केस डी इज इन ऑर्डर टू फ्राइटन मिसेस बूथ।
उसने क्या किया है कि उन्होंने एक जलता हुआ न्यूज़पेपर जो है वो लेटर बॉक्स में बूथ के डाल दिया, और उससे क्या हुआ कि आग लग गई, और उस आग, घर में आग लग गई। डाला था लेटर बॉक्स में, लेकिन आग लग गई घर के अंदर। उसमें 2 बच्चे जो है वो जल के मर गए। अब ये बात है कि उसकी इंटेंशन थी जस्ट टू फ्राइटन देम, वहां पर उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो बच्चे मर जाएं। डी नॉट meant to kill but foreseen death or grievous bodily injury as a high probable result. D is guilty. She knew about the result of her conduct sufficient mens rea for murder. ये तो बात सही है कि वो जो है उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो जो है बच्चे मर जाएं या वो उनको मारना चाहती थी, लेकिन शी हैड सफिशिएंट नॉलेज कि जो वो एक्ट कर रही है इससे ऐसा हो सकता है कि आग ज्यादा भड़क जाए, ऐसा हो सकता है कि कोई मर जाए। तो वहां पर ये जो है कनेक्ट किया गया है इसको कि उसका जो मेंस्ट्रिया था वो था कि ऐसा हो जाए, उसको कोलैबोरेट किया गया। The intention not only means a specific intention but also generic intention. Section 39 of IPC defined term voluntarily a person. Voluntarily जो है वो क्या चीज है कि एक आदमी ने जो है इसको स्वेच्छा से कोई काम कर रहा है, बगैर किसी दबाव के कोई काम कर रहा है, बगैर किसी लालच के कोई काम कर रहा है, या उसके अगेंस्ट उसको किसी तरह की कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है, तो वो वॉलेंटरी एक्ट होता है। ये 39 सेक्शन जो है वो डिफाइन करता है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं एक बार क्या चीज है। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरीली व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, जहां पे वो इसको करना चाहता है, और बाय मीन which at the time of employing those means he knew, ये अभी हमने बात की कि नॉलेज, वो जानता है, और had reasons to believe and he has sufficient reason to believe to be likely to cause it, कि जो भी इससे वो कर रहा है, इससे जो नुकसानात होंगे, वो ये सब कुछ समझ रहा है, वो सब कुछ जान रहा है वहां पर। ये वॉलेंटरली का मतलब जो है वो बिल्कुल हमारे यहाँ आईपीसी में क्लियरली बताया गया है। Intention and motive, these two things are correlated. The motive works as the fuel for the intention. ये आप याद रखें इसको, आप if make notes तो it will be good for you. A motive works as a fuel for the intention. The motive is the reason why someone is going to do something. It is the fountain from which the action springs, whereas intent is गोल टू विच दे आर डायरेक्टेड। उसकी इंटेंशन जो है, इंटेंट जो है वो उसका गोल है, एंड मोटिव जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है। इंटेंशन मीन्स द पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग, मोटिव डिटरमाइन्स द रीजन फॉर कमिटिंग दैट एक्ट। द इंटेंशन इज द बेसिक एलिमेंट फॉर मेकिंग ए पर्सन लाइबल फॉर ए क्राइम विच इज कॉमन कंट्रास्टेड विद मोटिव। हम बात करते हैं, और ये याद रखिए कि मोटिव प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डूइंग सम क्राइम। उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए मोटिव जो है वो जरूरी है। कोई किसी को पीटता है, उसका मोटिव ये होता है कि इसको सबक सिखाना है। कोई किसी की बेइज्जती करता है, वो किसी का उसका मोटिव होता है कि वो अपने जो उसकी बेइज्जती हुई थी उसका बदला ले ले। कोई किसी के को मारने के लिए किसी को उकसाता है, तो उसका मोटिव ये होता है कि वो काम उसे ना करना पड़े और उसका काम कोई दूसरा बंदा कर दे। ये हमेशा मोटिव जो है वो जरूर कहीं ना कहीं पे छिपा रहता है। नॉलेज एज मेंस रिया, हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड में नॉलेज एज मेंस रिया जो है उसको माना गया है। ये बहुत ही ज्यादा समझने की बात है और इम्पोर्टेंट चीज है। नॉलेज इज द अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। जो कुछ बंदा कर रहा है उसकी नॉलेज जो है उसको उसकी कॉन्सिक्वेंसेज को बताता है कि जो वो एक्ट कर रहा है। मसलन कोई किसी के गोली मार रहा है तो ही नोज वेरी वेल कि मैं ये जो गोली मार दूंगा तो इससे ये आदमी मर जाएगा। इंटेंटेड टू मर्डर,
हिज इंटेंशन इज क्लियर, उसके वो ये कहे कि नहीं साहब मैंने मारने के लिए गोली नहीं मारी थी, नहीं, मारने के लिए गोली नहीं मारी थी तो आदमी टांग में मारेगा गोली या कहीं और मारेगा. बट इफ somebody is firing at the chest, somebody is firing at the head, it means he knows that what he is doing, his intentions are very clear that he want to kill that person. और सेक्शन 307 जो हमारे यहाँ पे है, अटेम्प्ट टू मर्डर जो है, वो इट सेज दैट मेंसुरिया द नॉलेज एंड इंटेंशन आर ऑन द सेम फुटिंग with a guilty mind, therefore knowledge is also component which includes mens rea, therefore the Indian Penal Code recognize mens rea as knowledge. ये इंडियन पिनल कोड जो है वो नॉलेज को जो है मेंस रिया की तरह ही रिकॉग्नाइज कर देता है. अब मैं आपको 307 की बात बताऊं कि ये इन्होंने जो यहाँ पर हम बात कह रहे हैं, ये क्यों इसको इस तरह से बयान किया गया है. 307 is the section which deals with the attempt to murder, and it goes like this: whoever does any act knowingly. यहां पर ये समझना है कि वो जो कुछ ऐसा कर रहा है वो जानबूझ के करेगा. with the intention भी है या knowledge है, and under such circumstances, ऐसी परिस्थितियों में that if he by that act caused death, उसके उस कृत्य से किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, he would be guilty of murder. 3 चीजों की यहां पर बात की गई है. इंटेंशन उसकी है या उसको नॉलेज है, और या अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वो ऐसा एक्ट करता है जिससे उसके इस एक्ट को करने से किसी की मृत्यु हो जाती है. ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, शैल बी पनिश्ड. देखिए मे और शैल, इसमें हमारे यहाँ पर 2 चीजें यूज की जाती हैं. मे का मतलब ये है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बाउंडेशन नहीं है. लेकिन जहां पर शैल का इस्तेमाल होता है, इट मीन्स ये बाउंडिंग हो गया कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही जुडिशरी को ऐसा ही करना पड़ेगा. ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म, ऐसी अवधि के लिए उसको कारावास दिया जाएगा कि जो वहां पे डिस्क्रिप्शन होगा, विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल के लिए कम से कम. एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन भी हो सकता है. एंड इफ हर्ट्स is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment of life, और उसको आजीवन कारावास भी मिल सकता है, और टू सच पनिशमेंट एज इज हेयरइन बिफोर मेंशन्ड, और जैसा कि पहले कहा गया है उसके आधार पर. तो यहां पर अब ये बिल्कुल देखिए 3 चीजें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि इन्होंने इंटेंशन को रखा है मेंसरिया के साथ में. इंटेंशन मीन्स मेंसरिया, इन्होंने नॉलेज को रखा है इंटेंशन के साथ में मेंसरिया के होने के लिए, और इन्होंने सर्कमस्टेंसेस की भी बात की है. तो यहाँ पर जो एक ये ओम प्रकाश वर्सेस पंजाब का एक केस हुआ था. डिफेंडेंट डज नॉट गिव द फूड टू हिज वाइफ फॉर सेवरल वीक्स एंड ही इज नाउ लाइबल टू मर्डर बिकॉज एक्ट मस्ट बी डन विद इंटेंट और नॉलेज. उनको ये नॉलेज थी वहां पर कि अगर हम इस व्यक्ति को या इस औरत को या उस बच्चे को खाना हम नहीं खिलाएंगे बहुत दिनों तक, तो चूंकि ये बीमार है या ये कमजोर है और इसकी इससे मृत्यु कारित होगी, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि वो जो है मर्डर के लिए लायबल हैं. नेग्लिजेंसी की हम बात करते हैं. द थर्ड फॉर्म ऑफ मेंस रिया इज नेग्लिजेंसी. नेग्लिजेंसी इज द ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ, ऐसी ड्यूटी जहां पे आपको केयर करनी थी लेकिन आपने केयर नहीं की. ए पर्सन व्हेन ही इज नेग्लिजेंट इफ ही फेल्स टू एक्सरसाइज द ड्यूटी और कॉशन व्हाइल परफॉर्मिंग ए लॉफुल एक्ट. लॉफुल एक्ट का मतलब हमने कल भी बात की थी ये वाली, कि किसी एक आदमी को इस बात के लिए रखा गया कि उसे किसी बच्चे की टेक केयर करनी है. टेक केयर में उसको टाइम से दूध पिलाना है, उसको देखना है कि बच्चा बेड पे है, बेड से ना गिर जाए,
या बच्चा जो है कहीं छोटा ऐसा है कि वो कहीं बिजली का कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, और वो उस चीज को ना करते हुए ना ही उसने बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे को ऐसी जगह लिटा दिया कि वो बच्चा बेड से गिर गया, उसने ख्याल नहीं किया कि उसने बच्चे ने किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छेड़ दिया जहां पर उसको जो है इलेक्ट्रिक शॉक हो गए हैं। The concept of reasonable negligence is not defined anywhere, लेकिन the test of reasonable care depends on the view of the prudent man, therefore, who is able to fail to take care of that particular person. तो नेग्लिजेंसी की यही बात है कि आदमी जब जहां पर जो है उसे जो कुछ करना चाहिए था उसने वो काम नहीं किया और उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो गई, कोई मृत्यु कारित हो गई या किसी के कोई चोट लग गई, तो वही जो है वहां पे नेग्लिजेंसी की बात आती है। इसके बाद में एक चीज हम और डिस्कस करते हैं जिसमें किसी दूसरे के एक्ट की वजह से किसी दूसरे को हानि पहुंचती है, और इसको हम वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। टॉर्ट के अंदर आता है, टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग। विल टॉक दिस according to the principle of vicarious liability, when a person is liable for the wrong acts done by another person, then that first person is known as vicarious liable for the action of the second person. Here the relationship between the two of them is must. ये ध्यान रखना चाहिए, vicarious liability के अंदर पहले और दूसरे का रिलेशन जो है वो होना जरूरी है। जैसे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म में एक आदमी ने कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे दूसरी किसी फर्म का कोई नुकसान हो गया, तो वो जो है दूसरा पार्टनर भी है उसका लाइबल होगा। मास्टर एंड सर्वेंट, जो अगर किसी ने कोई गाड़ी ली हुई है, वो गाड़ी उसका नौकर चला रहा है, कुछ कर रहा है और उससे कहा वहीं कोई ऐसी किसी को नुकसान या हानि पहुंचती है, तो मास्टर जो है he will be liable. The principal is liable committed by his agent during the course of employment. The plaintiff has the choice to sue the principal or agent or both. वो जो plaintiff है दोनों को या एक को किसी को उसके लिए मुकदमा डाल सकता है। और दोस्तों, I hope that we'll stop today here only, and after that we will go into other details of the IPC. I hope once again you would have enjoyed this session, and I request all of you to subscribe this channel, like this channel, share this channel, so the other who want to understand the law and the aspect of law can learn this. Thank you.